ندا دینے والا ہوتا ہے، وہ اوپر کھڑا ہو کے ندا دیا کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی وفات ہو گئی، تو رات تک قلعے کے اندر اتنے لوگ آئے کہ پورا دمشق چراغاں ہوگا، یوں لگ رہا تھا کہ کیا ہے، کوئی ایسا کام ہو گیا ہے، کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ کوئی کسی کی کیا ہے کام میں دلچسپی نہیں تھی۔ حادثہ اتنا بڑا تھا کہ اس حادثے سے ہر ادنا اعلیٰ متاثر تھا۔ پھر جنازہ اٹھا تو کہتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد کا جنازہ، لاکھوں کی، مصر اور دمشق کے اندر آج تک اتنا بڑا جنازہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اسی وجہ سے امام احمد ابن حنبل کہا کرتے تھے، ہم اہل سنت کا اگر حق پر ہونا یہ معلوم کرنا ہو تو ہمارے وفات کا انتظار کرو اور ہمارے جنازوں کو دیکھو، تب تمہیں واضح ہوگا کہ کتنے لوگ آتے ہیں ہمارا جنازہ پڑھنے کے لیے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی وفات ہو گئی۔ پھر اس کے بعد آج تک ایک کی ضرورت ہے، اس خلا کو کوئی پر نہ کر سکا۔ ان کے شاگرد جو بنے وہ خود اتنے اعلیٰ ہیں کہ ان کے بھی مثال کے کوئی اور شاگرد نہیں بنے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن القیم، ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے شاگرد امام ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر، وہ ان کے شاگرد ہیں، جو تفسیر ابن کثیر کے کیا ہیں، مصنف ہیں۔ آج تک ان جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا، ان جیسا تو کیا، ان کے شاگردوں جیسا بھی کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اور آج تک اگر دیکھا جائے تو 700 اور 1400 لگا لیجئے، 700 سال گزر گئے، لیکن ان کی کتابیں پڑھیں گے اور ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے تو ایسا لگے گا گویا کہ ابھی ہمیں کیا ہے تعلیم دے رہے ہیں، ایسا محسوس ہوگا۔ اللہ نے وہ برکت رکھی ان کی کتابوں میں، ہزاروں لوگوں کو جو سنت پر عامل بنایا اور کٹر بدعات سے نفرت دلایا اور بڑے بڑے ائمہ بنے۔ یاد رکھیے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کی زندگی پڑھ کے بڑھے۔ اسی لیے بعض لوگ کہا کرتے تھے علامہ ابن باز ہوں، علامہ عثیمین ہوں، علامہ البانی ہوں، اگر ان سب کو البانی، عثیمین، ابن باز بنایا تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے بنایا۔ حتیٰ کہ محمد بن عبد الوہاب ہوں، اس تحریکی طور پر انہوں نے جو کام کیا، اگر دیکھا جائے تو اصل میں کیا شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں نے انہیں بنایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول الامین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ يقول الله عز وجل منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا، منها خلقناكم وفيها نعيدكم، پھر اسی مٹی میں ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے، ومنها نخرجكم تارة أخرى، پھر اسی مٹی سے، اسی زمین سے تمہیں دوسری مرتبہ کھڑا کریں گے ہمارے حساب کتاب۔ تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے جو نظام جو بنایا ہے اسی اعتبار سے ہر آنے والے دنیا کے اندر اس کو جانا بھی، کوئی یہاں پر ہمیشہ کے لیے آیا نہیں۔ اگر ہمیشہ کے لیے کوئی آتا تو رسول اللہ سے آتے۔ اللہ نے فرمایا کہ وما جعلنا من قبلک الخلد، وما جعلنا من قبلک الخلد، ہم نے آپ سے پہلے بھی جو ہے کسی کو ہمیشہ کی عطا نہیں کی، کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں آیا۔ تو اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیدائش بھی رکھی ہے، موت بھی رکھی ہے۔ اب یہ موت کسی کو آتی ہے، کسی کو نہیں پڑتی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں اپنے آپ کے لیے تیاری کرنی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہمیں آخرت کی ہمیں فکر کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں جب آپ مدینے میں آئے تو قبرستانوں کے اندر قبروں کی پوجا ہوتی تو آپ نے منع کر دیا کوئی قبرستان نہ جائے، کیوں؟ وہ اس دور پہ شرک کر دیتے۔ پھر اس کے بعد جب توحید پھیلی، رسول اللہ نے فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، میں تمہیں اس سے پہلے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا، اب زیارت کرو، اب جاؤ۔ کیوں؟ فإنها تذکر الآخرة، اس لیے کہ یہ قبروں کی زیارت تمہیں آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ اب اس دنیا، اس کے شہر خاموشاں جو ہے یہ پورا قبرستان، اس کے اندر بڑے بڑے مالدار بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، علماء بھی ہیں، جہلاء بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، ہر قسم کا آدمی ہے، لیکن کسی کو بولنے کی اجازت نہیں۔ اس کا نام ہے شہر خاموشاں۔ پوری سٹی آباد ہے لیکن غیر آباد، کوئی بول نہیں سکتا، کوئی دیکھ نہیں سکتا، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس جگہ ابھی آباد رکھا ہے
जिस जगह में ये लोग पहुँच गए। अभी आज सुबह तक भी जावेद साहब हमारे साथ बातचीत लोगों के ताल्लुकात, लेकिन फिर अल्लाह ताला का वक्त जब ले आया किसी को नहीं पता, सोते ही सोते रह गए, किसी को नहीं पता। डॉक्टर भी हैरान क्या हुआ, ये अल्लाह ने वक्त ला लिया। बोलने के लिए हम बहुत असबाब बोलेंगे, कोई बोलते शुगर बढ़ गई, कोई कहता है कि जब मैंने वो इलाज नहीं किए, कोई मेडिसिन नहीं खाए, ये सब ये दुनिया के असबाब हैं, ये हमारे अपने ख्यालात। असल चीज़ क्या है, फ़ैज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअ वला यस्तक़दिमून। जब वक्त अगर आ जाए तो न एक लम्हा आगे न एक लम्हा पीछे, ये अल्लाह का निज़ाम है। जब अल्लाह ने एक पैदाइश को रखा है तो मौत को। अब ज़रूरत इस बात की है कि हम इस जगह से हम जाएँ तो हम यहाँ से सबक लेकर जाएँ, अपने आखिरत की तैयारी करें। किसी को मौत बोल कर नहीं आती। जावेद साहब कल ही आए हैं, कल ही से वापस आए, बड़ी मुबारक जगह से आए, मुबारक अमल से आए, और अल्लाह के ज़ात से उम्मीद है कि उनके गुनाहों को अल्लाह ने माफ़ कर दिया होगा। और फिर आज का दिन मुबारक दिन है, आज का दिन पीर का दिन मुबारक दिन है, रसूलुल्लाह की पैदाइश का दिन, आपकी वफ़ात का दिन, आपकी नबूवत का दिन, आपने रोज़ों को इख्तियार किया इस दिन को, तो पीर का दिन बड़ा मुबारक दिन है। और इस दिन में अल्लाह ताला ने वफ़ात की दी, तो अल्लाह ताला से हम उम्मीद करते हैं कि रसूलुल्लाह के साथ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला करेंगे इंशाअल्लाह। और सुन्नत की पैरवी के लिए, सुन्नत की इशाअत के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। सबको को मालूम है कि आप लोगों का खींच चले आना थोड़े से वक्फे के अंदर, ये खुद इस बात की दलील है कि उनकी मोहब्बतें आपके दिलों के अंदर हैं। लिहाजा हम आपसे गुजारिश करते हैं कि आप जहाँ मोहब्बतें दिलों के अंदर हैं, यहाँ पर का आना जैसे कि एक बना बनाए, बल्कि जब भी आपको याद आए आप दुआ करें। जो कुछ उन्होंने तालीमात दी हैं किताब व सुन्नत की रोशनी में, उन तालीमात पर आप अमल करें, यही उनके लिए तजारिया, यही उनके लिए सवाब का काम है। चले गए, उनका अमल ख़त्म हो गया, लेकिन उनके ज़रिए से जो दावत फैली, उनके ज़रिए से जो काम हुआ है, मुख्तसर मुद्दत में, थोड़े से वक्त में अल्लाह ने बरकत दी। उम्र थोड़ी 43 ईयर्स है, 43 ईयर्स है, और इस मुद्दत में उन्होंने वो काम किया है जो लोग सदियों में करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला जिसको इस काम देना चाहे दे देता है। उस बंदे को उसको फिक्र नहीं होती क्या काम हो रहा है। जो बंदा अल्लाह के रोड खड़ा होता है, अल्लाह ताला उसके अंदर इखलास और बरकतें डालते हैं। उस काम के अंदर अल्लाह ताला इतना बढ़ा देते हैं, अल्लाह ताला के इंसान सोच भी नहीं सकता। तो इसी तरह का इमाम अल्लाह ने उसके जरिए से मस्जिद का काम करवाए, बरकत का काम करवाए, दुरूस और खुतबात जारी हैं, एक यहाँ ही नहीं पूरे इंडिया के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह जो है उनके दुरूस और खुतबात जो चल रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये कहेंगे भाई वो इसको आपको एंड आ गए, एंड नहीं आए। ये अल्लाह का दीन है, ये अल्लाह का दीन है। अल्लाह ताला जिसको जिससे चाहे अपने दीन के अंदर लेता रहेगा, लेकिन ये है कि जो बंदा जो करके चला गया वो हमारे मिसाल है, वो हमारे मिसाल है। तो हम हमारी जो है यहाँ पर इस बात की कोशिश हो कि हम यहाँ से जाएँ तो जिस तरह उन्होंने अल्लाह उसके रसूल के खातिर किताब व सुन्नत को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है, बिताई है, उस मिशन को लेकर आप आगे बढ़े। उस मरकज़ को जो आबाद करना आप लोगों का काम है, आप लोगों का काम है कि याद रखें। वो मरकज़ तो कायम तो हो गया, लेकिन उसका बढ़ाना आपका काम है। आप नियत करें कि इस मरकज़ का साथ देंगे तो किताब व सुन्नत की रोशनी फैलेगी, बिदअत और खुराफात ख़त्म होंगी। खासकर इस महल्ले से, चेन्नई से जो है ये वो चीज़ें जो दीन के नाम पर जो कुछ भी फसादात हो रहे हैं, खुराफात हो रहे हैं, जो शिरकियात हो रहे हैं, गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है, इन चीज़ों को आप मिटाएंगे, खुले नियत करेंगे इंशाअल्लाह। आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। ये है सदक़े जारिया उनके, ये है सवाब जारिया उनके। इसके लिए जो है कोशिश करें इंशाअल्लाह। यहाँ से माशाअल्लाह नौजवान की कसरत है, मुझे देख के बड़ी खुशी हुई कि नौजवान बहुत ही बड़ी तादाद में आए हैं। इन्हीं नौजवान ही रेवोल्यूशन है, नौजवानों से ही इनकलाब आता है, नौजवानों से ही काम बनता है, नौजवानों से ही दीन फैलता है। तो अल्लाह ने आप लोगों को इख्तियार किया, चुना, तो इसको आप वाक़ई ये नहीं कि जावेद साहब ख़त्म हुए तो काम ख़त्म हो गया, नहीं, ये अल्लाह का काम ख़त्म नहीं हो सकता। उन्होंने बुनियाद डाली, आप उस शजर की आबियारी करना, उसको बढ़ाना, उसको जो चढ़ाना, उसको जो फल फूलदार करना, ये हमारा आपका काम है। तो इसके लिए जो है आप लोग यहीं से जहन बना के जाएँ कि हम इस मरकज़ का साथ देंगे और इस मिशन को हम जो है तादाद में हयात को बाकी रखेंगे इंशाअल्लाह, ताकि हमारे लिए भी जो सदक़े जारिया हो और इनके लिए सदक़े जारिया हो। और दूसरी बात यह है कि इनके ज़िम्मे अगर कोई चीज़ अगर रहे है किसी के ज़िम्मे, इनको कोई देना है
या ये जो किसी को देना है तो बराह करम हमसे रब्ता करें, या मुझसे या कि मरकज़ के अरकान हैं या डॉक्टर साहब हैं, हामिद हैं, हमारे भाइयों में जिसका भी कोई जिम्मा है आप जो है कट करें। ये देना है किसी को वो भी बताएं, किसी ने दिया है इनसे वो भी बताएं। ये दोनों ही चीज़ के हुकूक़ में आती हैं, ये हुकूक़ुल इबाद है। तो लिहाजा इसकी माफ़ी तलाफ़ी होना चाहिए, साफ़ सफाई होना चाहिए। तो लिहाजा इस मामले के अंदर भी आप ये ना करें कि भाई वो बंदा चला गया तो मैं इसे छोड़ दिया, नहीं, या तो माफ़ कर दें, या तो माफ़ कर दें। अगर कोई चीज़ जिम्मे है तो माफ़ कर दें, नहीं आपको लेना है तो आप हमसे रुजू करें, इंशाल्लाह जो कुछ भी हमसे मुमकिन है इंशाल्लाह हम ज़रूर करेंगे। या कोई उनको देना भी है तो वो भी जो है आप लाकर दे दें, क्योंकि उनके भी बच्चों का हक़ है, वो विरासत में आएगा। तो लिहाजा जो चीज़ भी माली एतबार से जो कुछ भी हिसाब किताब किसी के साथ है तो हमसे रुजू करें, ताकि पूरी तरह जो माफ़ी हो जाए। क्योंकि माफ़ी जो होती है वो क्या है, बंदे और रब के दरमियान में होती है, और बंदों के दरमियान में जो मसाइल जो रहते हैं, जो माली मामलात रहते हैं, वो उसी वक्त माफ़ होते हैं जब साफ़ सफाई हो जाए। तो बंदा माफ़ कर दे या फिर जो उसका हक़ उसका अदा कर दे। तो लिहाजा इस बात को भी ध्यान में रखें और हमसे रुजू करें। और आखिरी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदफीन के बाद आप फरमाते थे इस्तग़फिरू लिअख़ीकुम फ़इन्नहु अलआन युसअल। आप फरमाते थे अपने भाई के लिए मग़फ़िरत की दुआ करो इस वक्त, क्यों ये वो वक्त है कि इनसे अब पूछा जाए। लेकिन कोई इज्तिमाई दुआ नहीं होनी चाहिए, जैसे हमारे पास तलक़ीन पढ़ के फातिहा करके सबकी दुआ करते हैं, वो साबित नहीं, वो बिदअत है। सुन्नत क्या है, हर आदमी अपनी जगह दुआ करे उनकी मग़फ़िरत के लिए, रसूलुल्लाह की वसीयत के एतबार से, आपकी नसीहत के एतबार से, या ये आप पर हक़ है उनका कि आप भी उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला उनकी क़ब्र को नूर से भर दे, उनके अमाल को कबूल फरमाए, अल्लाह ताला जन्नतों के आला दर्जात में अता फरमाए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहबत अल्लाह उन्हें नसीब फरमाए, और उनके जो पसमंदगान हैं, उनकी बीवी हैं, उनके बच्चे हैं, अल्लाह उन्हें सब्र जमील अता फरमाए, नसीब अता फरमाए। अल्लाह ताला जो है कोई और जो है बेहतर से बेहतर रास्ता अल्लाह ताला उनके लिए बना दे, ताकि उनका रास्ता भी दीन के मुताबिक गुजरे, उनकी दुनिया भी उनकी बन जाए। तो लिहाजा आप लोग जो है इस वक्त दुआ करें ताकि अल्लाह ताला इस वक्त की दुआ को कबूल फरमाए।